پہلے چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈبیٹنگ میں بہت ماہر تھا، میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوگی چند مہینے میں اسے لائن پہ لے کے آؤں گا. یہ میری سوچ تھی اس وقت 22 سال 23 سال پہلے. اللہ نے مجھے فن دیا ڈبیٹنگ کا. کوئی بھی شخص ہوگا اس کو 3-4 مہینے میں لائن پہ لے کے آئیں گے. پھر تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے ہدایت دی. پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لیے سب سے بہترین ہو، مجھے سب سے بہترین بیوی دے. اور اللہ نے میری دعا پوری کی. اور تقریباً 19 سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا، تو اللہ نے مجھے الحمدللہ پونا شہر سے میرا ہم سفر چنا. اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً 19.5 سال پہلے میں نے میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص 10 لاکھ روپے دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کے لیے. $10,20 سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً 2-3 کروڑ ہو سکتے، 2-3 کروڑ روپے. الحمدللہ میں اس جواب سے کافی خوش ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی. بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونا سے مجھے دی. اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دیگر ممالک کا سفر کیا. ہم نے جب تحقیق کی پتا چلا کہ کئی اسلامک اسکول ہے امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، ساؤتھ افریقہ میں، آسٹریلیا میں. تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی، میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لیے. میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے، صرف دعا کی ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی، جسے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لیے لوگ مجھے بلاتے تھے، میری بیوی کو بلاتے تھے. میں تقریر کر رہا تھا عوام میں، میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں. اور اللہ کے فضل سے کئی ممالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی. امریکہ، کینیڈا، یو کے، سنگاپور، ملیشیا، سعودی، یو اے ای، آسٹریلیا، الحمدللہ کئی ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا اسلامک اسکول کو دیکھنے کا اور ہمارا مشن بن گیا کہ 2-3 سال میں جتنے سب سے بہترین اسکول تھے دنیا میں اسلامک اسکول اس وقت تقریباً 13-14 سال پہلے ہم نے جا کے اس اسکول کا سفر کیا، مینجمنٹ سے گفتگو کی اور کئی شہر خصوصاً ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، یو ایس اے یہ مشہور تھا اسلامک اسکول میں. لیکن جب ہم نے ان اسلامک اسکول کا سفر کیا ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ اسکول میں کوئی شراب نہ پیے، یہ اسکول میں کوئی ڈرگ نہ لے، اس اسکول میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت ہو، اس اسکول میں بچے نماز پڑھے. یہ ان کا مقصد تھا. ایسے اسکول تو ہر مسلم مینجمنٹ اسکول، اکثر مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہندوستان میں ہیں
12-13 साल पहले वहां ड्रग नहीं मिलते थे, शराब नहीं मिलती थी, लड़कियां हिजाब पहन सकते थे और नमाज पढ़ सकते थे। तो मुझे कुछ नई चीज नहीं मिली, लेकिन वो माहौल के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दान देना पड़ेगा कि वो मुसलमानों ने ऐसे माहौल में ऐसे स्कूल कायम किए जिनका मेन मकसद था इस्लामिक माहौल। तो मैं ऐसे स्कूल को कहने लगा मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल, इस्लामिक स्कूल नहीं। तो मेरी टर्मिनोलॉजी में मैंने कहने लगा कि ऐसे स्कूल है मुस्लिम मैनेज स्कूल, मुस्लिम लोग ऐसे जो स्कूल मुस्लिम लोग मैनेज करते, लेकिन इस्लामिक स्कूल में उसे कहता हूं जिस स्कूल में तालीम दोनों जहां की हो, इस दुनिया की और आखिरत की। इन स्कूलों में जब हमने इन स्कूलों का सफर किया, हमें पता चला कि इन स्कूलों में हफ्ते में 3 बार इस्लामिक सब्जेक्ट्स थे, 3 पीरियड सिर्फ इस्लामिक सब्जेक्ट के, कुछ स्कूलों में 5। अक्सर स्कूलों में मैक्सिमम 1 पीरियड दिन में। एक स्कूल थी शिकागो में जो सबसे बेहतरीन थी उस वक्त, जहां दिन में 2 पीरियड इस्लामियात के थे, माशाअल्लाह 2 पीरियड। और इन स्कूलों में अरबी जबान था, लेकिन जब हम गुफ्तगू करते थे बच्चों से, अरबी में 1 ग्रेड मिले, लेकिन सिर्फ शोय बहुत कम जानते थे। खुशी हुई कि ऐसे बिगड़े हुए माहौल में ऐसे स्कूल कायम हुए। मैंने अल्लाह से इनके लिए दुआ की, लेकिन मेरे जहन में जो था, ऐसा स्कूल कायम करे जिसमें तालीम दोनों जहां के लिए हो। फिर जब अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बच्चे दी, 3, 1 लड़का और 2 लड़की, जब वक्त आया उनका एडमिशन का, तो हम समझते थे कि हम में वो कुव्वत ही नहीं कि हम स्कूल कायम कर सके। हम तो एजुकेशनिस्ट नहीं है। मेरी बीवी, मेरी अहलिया अल्हम्दुलिल्लाह वो टीचर थी, लेकिन मैं तो एजुकेशन में जानता ही नहीं था। तो हमने सोचा कि हम हमारे बच्चे को एक अच्छी स्कूल में तालीम देंगे, अंग्रेजी मीडियम की, उम्दा से उम्दा तालीम, और घर पे हम अच्छे आलिम रखेंगे। लेकिन फिर मैं और मेरी अहलिया ने सोचने लगे कि हम कितने सेल्फिश है, खुदगर्ज है कि सिर्फ हम हमारे बच्चों के बारे में सोच रहे। क्यों ना हम एक स्कूल कायम करें, सारों बच्चों के लिए नहीं तो नहीं, कम से कम कुछ बच्चे इसका फायदा उठा सके। और जब मैंने गुफ्तगू की, डिस्कशन किया कई उलमा से, बड़े बड़े मदरसों के, मैंने मेरी ख्वाहिश इजहार की नदवा के उलमा से, अजहर के उलमा से, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के उलमा से, मदीना के उलमा से, उम्मुल कुरा मक्का के उलमा से। अक्सर उलमा ने कहा, जाकिर भाई ये मुमकिन ही नहीं है, दीनी तालीम और असरी तालीम दोनों में अच्छा मयार मुमकिन ही नहीं है। कई लोगों ने कोशिश किया, भूल जाओ, मुमकिन ही नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं समझता हूं कि ये उलमा गलत थे, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। एक शख्स था जिसका नाम है डॉक्टर फा अब्दुर रहीम, जो मदीना के लुगा डिपार्टमेंट, अरबी डिपार्टमेंट के हेड थे। उन्होंने कहा कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर अल्लाह की मदद है और सही जिद्दोजहद से कोशिश की जाए तो नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। उससे हिम्मत मिली और तकरीबन 10.5 साल पहले हमने सोचा कि बंबई शहर में एक स्कूल कायम करें। तो मैंने मेरे दोस्तों से, करीबों से फोन पे
चलो स्कूल कायम करें इस्लामिक। सिर्फ 3 या 4 हफ्ते बाकी थे एकेडमिक ईयर शुरू होने के। अप्रैल के आखिरी हफ्ते या मई के पहले हफ्ते में मैंने चंद दोस्तों से फोन किया, शुरू करें। जहां सारे स्कूलों में एडमिशन खत्म हो चुकी थी, हमने पैम्फलेट शाया किया कि हम इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम कर रहे। अल्लाह की मदद थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10.5 साल पहले हमने इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल कायम किया, और पहले साल सिर्फ 4 क्लासेस थे, नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड। और मेरा नजरिया हमेशा था कि जो भी काम करो एक यूनिक काम करो। यूनिक मतलब हटके, अलग, या दुनिया में बेहतरीन काम। मेरी हमेशा ख्वाहिश थी और मेरा नजरिया यही था कि 2 किस्म के काम करो। ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो, और ऐसे काम करो जो हटके है। यह कहना जरूरी नहीं कि ये दोनों काम कुरान और हदीस की रोशनी में से होना चाहिए, लेकिन ऐसे काम करो जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो या हटके, यूनिक। जो काम सब लोग कर रहे हैं वही मयार पे, आम मयार पे मैं भी करूं तो कुछ मजा नहीं। उसी नजरिए से 20 साल पहले सन 1991 में 1991 में हमने कायम किया इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। एक ऐसा इदारा जो हटके है इस्लाम और दिगर मज़ाहिब में, ना ही ईसाइयत और इस्लाम के बारे में, लेकिन दिगर मज़ाहिब के बारे में ऐसा इदारा शुरू किया। और आज अल्लाह के फजल से हटके था, आज अल्लाह ने ऐसे मयार पे पहुंचाया हमें, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी नियत से 10.5 साल पहले हमने कायम किया इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल। और हमने चाहा, इट वॉज अ पायलट प्रोजेक्ट, कि ये प्रोजेक्ट एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट बोलते ना सैंपल, और सैंपल के लिए इंसान जिद्दोजहद करता है कि ये सैंपल सबसे बेहतरीन हो। और हमने सोचा ऐसा स्कूल कायम करे इसमें दीन और दुनिया की तालीम दोनों हो, लेकिन दोनों उम्दा हो। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारा बच्चा जब 10वीं और 12वीं से फारिग हो तो कम से कम एक आम आलिम जो मदरसे से फारिग होता है, कम से कम उतना इल्म तो उसके पास हो। ये मेरी दुआ थी। और असरी तालीम में इंटरनेशनल लेवल पे उसका मयार हो, इस नियत से शुरू की। और हमने सर्वे करने लगे कि बाकी स्कूल का मयार क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, और कोशिश करने लगे कि हम इन बाकी स्कूलों से बेहतर बने। तो पहले हमने तहकीक की कि आम स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। तो पता चला कि बंबई शहर में, जो एक तालीम याफ्ता शहर है, आम स्कूलों में हर क्लास में तकरीबन 40 से 50 बच्चे होते हैं एक अच्छे मयार के स्कूल में। बाकी स्कूलों में 60 बच्चे, 70 बच्चे। अच्छे मयार के स्कूल में 40 से 50 बच्चे, और 2 क्लास में 3 टीचर होते। तो तकरीबन अच्छे स्कूलों में हर 30 से 35 बच्चे के पीछे एक टीचर है, एक मुदर्रिस है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कहती है कि हर 20 बच्चे पे एक टीचर होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल्स है यूके, यूएसए, कनाडा में, उनका स्टैटिस्टिक्स है हर 10 से 12 बच्चों के पीछे एक टीचर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हम स्कूल कायम करेंगे हर 5 बच्चे पे एक टीचर। अगर दुनिया का ऊंचा मयार 10 से 12 है, हम शुरू करेंगे हर 5 बच्चे पे एक टीचर, चाहे कितना भी खर्चा हो। और शुरू किया हमने स्कूल। आम जो स्कूल हमारी है, नर्सरी शुरू होती है 8 बजे से लेकर 11:30 तक, जूनियर केजी 8 बजे से लेकर 1:20 तक, सीनियर केजी 8 बजे से 3:40 तक, और एक स्टैंडर्ड के बाद, पहली स्टैंडर्ड के बाद से लेकर 11वीं 12वीं तक 8 बजे सुबह से लेकर 4:30 बजे तक। आम स्कूलों से 2 घंटे ज्यादा है, क्योंकि हम तालीम दोनों जहां का दे रहे हैं। लेकिन ये जो 2 घंटे ज्यादा है,
क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नमाज पढ़ाते हैं, स्कूल के अंदर ब्रेक होता है, मिड डे मील होता है, लंच होता है। ये 8 से 4:30 बजे तक हमारे स्कूल में 12 पीरियड है, 12 घंटियां हैं। एक पीरियड 35 मिनट का होता है और 12 पीरियड में से 2 पीरियड आमतौर पे हर रोज होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मार्शल आर्ट्स, टेक्वांडो, कराटे, स्विमिंग, कंप्यूटर्स। तो 12 पीरियड में से तकरीबन 2 पीरियड हर रोज होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मींस जो मेन तालीम के अलावा। और हमारे स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम मार्शल आर्ट सिखाते हैं, कराटे, टेक्वांडो। जब बच्चा 5वीं में पहुंचता है, लाजिम है कि उसे ब्लैक बेल्ट बनना चाहिए 5वीं या 6वीं में। एकदम ही कमजोर है तो 6वीं में ब्लैक बेल्ट बनेगा, लेकिन ब्लैक बेल्ट बनना फर्ज है। आज हमारे स्कूल में 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है, 50 से ज्यादा लड़कियां और 50 से ज्यादा लड़के ब्लैक बेल्ट। मैं नहीं जानता हूं पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्कूल में जिससे 100 से ज्यादा ब्लैक बेल्ट है। ब्लैक बेल्ट मतलब आप जानते हैं ना, मार्शल आर्ट्स में व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ग्रीन, ब्राउन, ब्लैक। ब्लैक सबसे ऊंचा है, 6 स्टैंडर्ड के अंदर ही बच्चे बनते हैं ब्लैक बेल्ट। स्विमिंग फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंपलसरी है, तैरना भी सुन्नत है। कंप्यूटर्स, जो बाकी 10 पीरियड है, ये 10 पीरियड में से सीनियर केजी में तकरीबन 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 2 जबानों में महारत पाए, इंग्लिश और अरबी। बच्चे जब दाखला लेते नर्सरी में, जब सीखते हैं ए फॉर अल्लाह, बी फॉर बिस्मिल्लाह, साथ साथ सीखते मिन अलिफ असदुन, मिन बा बैतुन, मिन ता तुफाहुन। अरबी जबान 3री साल से सीखते हैं और बढ़ते बढ़ते अरबी पे महारत होती है। सीनियर केजी में 11 पीरियड होते हैं, 11 पीरियड में से 1 पीरियड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बाकी 10 पीरियड में से 5.5 पीरियड अरबी जबान के लिए हर रोज, 4 पीरियड तकरीबन हिफ्ज के लिए और 1.5 पीरियड अरबी पे। बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 3री तक के तकरीबन 4.5 पीरियड अरबी जबान में, 5.5 अंग्रेजी जबान में। फिर 4वीं से 8वीं तक के तकरीबन 4 पीरियड, 3.5 पीरियड अरबी में और 6.5 पीरियड अंग्रेजी में। और 8वीं, 9वीं, 10वीं में सिर्फ 3 पीरियड अरबी में और बाकी के 8 पीरियड अंग्रेजी जबान में। और अंग्रेजी जबान में से 1.5 पीरियड हर हफ्ते होता है इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज, ताकि वो गैरों में दावत कर सके। यानी आम क्लास के अंदर तकरीबन 50% अरबी होता है, 50% अंग्रेजी। ये 50% अंग्रेजी में 20% होता है, 20 से 25% होता है अंग्रेजी में इस्लामिक स्टडीज। और जब हम सिर्फ 3 पीरियड हफ्ते में अरबी सिखाएंगे तो वो तालिबे इल्म को अरबी पे महारत कैसे होगी? इसीलिए हम अरबी जबान में हदीस सिखाते, अरबी जबान में तफसीर कराते। नहीं तो आमतौर पे आप हिंदुस्तान में तफसीर जो होती है कुरान की, वो उर्दू में होती है। अमेरिका, इंग्लैंड में जाएंगे तफसीर होती है अंग्रेजी में। हमारे वहां तफसीर होती है अरबी में, हदीस होती है अरबी में, तौहीद सिखाते अरबी में, ताकि इतने अरबी पीरियड है ताकि उसे अरबी पे महारत हो। हमें अंग्रेजी पे महारत कैसे होती है? सिर्फ अंग्रेजी क्लासेस से नहीं, हम ज्योग्राफी भी अंग्रेजी में पढ़ते, हिस्ट्री भी अंग्रेजी में पढ़ते, मैथ्स भी अंग्रेजी में पढ़ते और साइंस भी अंग्रेजी में पढ़ते। तो इस स्कूल में 2 जबानों पे अहम दिया जाता है, अंग्रेजी और अरबी। उसके साथ साथ
ہم اور 3 زبان سکھاتے ہیں، ہندی، اردو اور مراٹھی۔ ہندی اور اردو پہلی سے 7ویں تک کے، اور مراٹھی اردو کیونکہ اکثر مسلمان اس دیش میں اردو بات کرتے، اور ہندی زبان کیونکہ یہ ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہے، اور مراٹھی کیونکہ اسٹیٹ کی زبان ہے۔ تو ہم بچوں کو 5 زبان سکھاتے ہیں۔ مراٹھی ہوتی ہے پہلی سے لے کے 8ویں تک کے، لیکن مہارت ہے انگریزی اور عربی میں۔ تو بچہ جب نرسری میں جاتا ہے عربی زبان سیکھتا ہے، جب وہ 3ری 4تھی 5ویں میں پہنچتا ہے وہ قرآن سمجھنے لگتا ہے، جب 9ویں 10ویں تک پہنچتا ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ تقریباً 80 سے 90% تک اکثر ہمارے طالب علم جو 9ویں اور 10ویں میں ہیں وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتے ہیں انگریزی میں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔